Alright, so now let's move on to the next question, which is question number 21, and here's what it says. Question number 21 बोलता है polyribosomes are aggregations of A. Ribosomes and tRNA, B. Peroxisomes, C. Several ribosomes held together by a string of mRNA, or is it option number D. tRNA? What do you think? Polyribosomes बच्चा क्या होता है? Polysomes या polyribosomes are nothing but when several are एक single strand of mRNA पे जब कई सारे ribosomes लगे होते हैं, when multiple ribosomes are held together by a single strand of mRNA, this entire structure is referred to as polyribosomes. So polyribosomes is nothing but several ribosomes held together by a single string of mRNA. I hope that is clear to everybody. इतना सबको समझ आया? So the correct answer would be option number C. Let's move on to the next question, and next question is question number 22, and here's what it says. Question number 22 बोलता है plant cells differ from animal cells in having, once again, question number 22 says plant cells differ from animal cells in having A. Cell wall, B. Plasmid, C. A large web center. Once again, what's happening? Just focus. Question number 22 बोलता है plant cells बचा they differ from animal cells in having A. Cell wall, B. Plasmid, C. A central vacuole, or D. All of these. So how are plant cells different from animal cells? They have cell wall, yes. They have plasmids, yes. They have a large central vacuole, yes. So all of these, option number D becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Now let's move on to the next question, which is question number 23, and here's what it says. Question number 23 बोलता है identify the parts which have been labeled as A, B, C, D in the given ultrastructure of a plant cell and select the correct option. आपको identify करना है A, B, C, D in the given structure of a plant cell, और you have to select the correct option. ठीक है, फिर correct option को select करना है. ठीक है, अब बच्चा अगर मैं बात करूँ ए की, ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए, इफ आई कुड जूम इट इन, विच आई वुड, ठीक है, देखो सबसे बाहर की तरफ द वन दैट शोन इन डार्क ग्रीन, वो है हमारी सेल वॉल, प्लांट सेल दिख रहा है ये, ठीक है, दैट क्लियरली मेंशन यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स A B C D of a plant cell, right? So सबसे बाहर plant cell में जो लेयर होती है, that's the cell wall. Inner to the cell wall, just inner to the cell wall is the plasma membrane. So A is nothing but the plasma membrane, so we can clearly eliminate C and D. If we look at B, अगर B को मैं थोड़ा सा zoom in करके दिखाऊँ, so B you can clearly see, B is nothing but chloroplast, so B goes with chloroplast. C की अगर मैं बात करूँ तो C is nothing but, अगर आप C को थोड़ा और ध्यान से देख पाओ, एंड I'm not very sure the diagram is very clear, तो C में ना एक्चुअली में से क्रिस्टे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, सो क्रिस्टे एक्चुअली में अपीयर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. इनर लेयर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ दीज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे. तो सी हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और डी की अगर बात करूँ तो डी हो गया हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को एक हिंट देता है, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स आप देख सकते हो प्लांट सेल्स में जो होता है, दे आर नॉन इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है, नॉन इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते, जिनको हम डिक्टियोसोम्स भी बोलते हैं, ठीक है. सो इफ़ यू गो बाय ऑल ऑफ दैट, ऑप्शन नंबर ए ऑटोमेटिकली बिकम्स द करेक्ट आंसर. सो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 25, एंड हियर्स व्हाट क्वेश्चन नंबर 25 says. क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है गिवन इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी एंड डी. ठीक है, तो नीचे दे रखा है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ए बी सी एंड डी. ठीक है, सबसे पहले वी लुक एट ए. और अगर आपने NCERT डाइसेक्टिंग द डायग्राम्स which was a series launched by me on my YouTube channel, on this very channel, अगर आपने वो अटेंड किया तो I'm sure you would have come across this diagram, जहाँ पे हमने NCERT के एक डायग्राम को बहुत अच्छे से डाइसेक्ट किया था, with respect to all the chapters. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये स्ट्रक्चर इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये ए जो है ना, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बी की अगर बात करो तो बी रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस. सी, इफ़ यू सी रिप्रेजेंट्स द माइटोकॉन्ड्रिया. और डी की अगर बात करूँ तो उसे डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द गोल्जी कॉम्प्लेक्स. डी रिप्रेजेंट द गोल्जी कॉम्प्लेक्स बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर लेयर होती है, द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, that kind of continues as the endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum ये वाला structure है, ठीक है. This is actually the Golgi complex, right? So A is basically the plasma membrane. A is the plasma membrane. B की अगर बात करूँ तो B न्यूक्लियस है, तो अगेन ओनली वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन. C की बात करो तो C माइटोकॉन्ड्रिया, D गोल्जी कॉम्प्लेक्स है. सो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर A becomes the correct answer. ठीक है, I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is an interesting question. Again, this particular question, why I also added a question mark here is this is not in NCERT. It's not in NCERT. ठीक है, ये वो कुछ क्वेश्चन है MTG में तो which are beyond the scope of NCERT, but again we will do it. एक्चुअली में अगर आपने मेरा क्रैश कोर्स अटेंड किया तो यू वुड
You might not know the direct answer to it, but indirectly we have touched upon this topic. So question number 25 says, according to unit membrane structure, the thickness of a plasma membrane is about A 35 angstrom, B 20 angstrom, C 75 angstrom और D 100 angstrom. अब देखो, याद है जब हमने सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, वी ऑफ कोर्स लेड मेजर एम्फोसिस ऑन द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, बट वी ऑल्सो टच्ड अपॉन कि इससे पहले जो सैंडविच मॉडल आए थे, एक डैनियल ई डेविसन मॉडल आया था, फिर रॉबर्टसन मॉडल आया था, उनके सैंडविच मॉडल्स जो बेसिकली थे, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या कहा था, उसमें दो सैंडविच मॉडल्स जस्ट सेड वन थिंग कि जो बेसिकली लिपिड की बाई लेयर है, द लिपिड बाई लेयर इज काइंड ऑफ बीइंग सैंडविच। लिपिड की जो बाई लेयर है वो एक तरीके से सैंडविच हो रही है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो ये लिपिड की बाई लेयर है, इट्स बीइंग सैंडविच बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, राइट। सो ये रॉबर्टसन का मॉडल था कि लिपिड बाई लेयर इज बीइंग सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन। अब बच्चा ध्यान रखना, ये जो थिकनेस है इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस इस मॉडल के अकॉर्डिंग, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल भी बोलो, इसके अकॉर्डिंग द थिकनेस ऑफ द एंटायर प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो 75 एंगस्ट्रॉम, मैंने डिग्री एंगस्ट्रॉम कर दिया, जस्ट सॉरी फॉर दैट। इस पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस है 75 एंगस्ट्रॉम, जिसमें इफ यू पे लिटिल अटेंशन, जिसमें द सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज ऑफ 35 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो सेंट्रल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है बच्चा ये 35 एंगस्ट्रॉम की है, एंड टू आउटर प्रोटीन लेयर्स दैट यू सी, दो आउटर प्रोटीन लेयर्स जो दिख रही हैं दे आर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम ईच, तो ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की है और बच्चा ये भी 20 एंगस्ट्रॉम की है। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ आया, ठीक है। तो बेसिकली और ये पूरा मिलके कितना हो जाएगा 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये सैंडविच मॉडल के अकॉर्डिंग जहाँ पे अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज बीइंग सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स, और फिर हम आगे जाके देखते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में कि इतना सिमेट्रिकल नहीं होता है, इट्स एक्चुअली एसिमेट्रिक, ठीक है। और तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर थी इसकी थिकनेस इट वाज 75 एंगस्ट्रॉम, इट वाज 35 एंगस्ट्रॉम एंड द टू आउटर प्रोटीन लेयर्स वर 20 एंगस्ट्रॉम ईच, सो total equals to 75 angstrom. So that makes option number C the correct answer. ठीक है, I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 26. And here's what question number 26 says. Question number 26 बोलता है the best material for the study of structure of cell membrane is, सबसे बेस्ट मटेरियल क्या है टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन? इज इट ए आरबीसी ऑफ ह्यूमन, इज इट बी लिवर सेल, इज इट सी किडनी सेल, इज इट डी मसल सेल? नाउ इफ यू गो बाय एनसीईआरटी बोलते हैं कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, काफ़ी सारी केमिकल स्टडीज करी गई on the cell membrane of a human RBC to deduce the structure, right? तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो human RBC है, human erythrocyte, it is a very suitable material to study the cell membrane, right? So option number A, RBC of human beings, becomes the correct answer. Let's move on to the next question, which is question number 27, and here's what it says. Question number 27 बोलता है which chemical property is shared by all types of lipids which are forming the plasma membrane? Is it A, sugar component? Is it B, glycerol backbone? Is it C, phosphate group? Is it D, hydrophobic region? What do you think? कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जो शेयर की जाती है सभी लिपिड्स के द्वारा? कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जो शेयर की जाती है सभी लिपिड्स के द्वारा? A, sugar component, B, glycerol backbone, C, phosphate group और D, hydrophobic region? What do you think बच्चा? अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, द शेयर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द लिपिड्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द एम्फीपैथिक नेचर। याद हमने कैटेगोरिकली डिस्कस किया था अबाउट द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स, राइट। एम्फीपैथिक नेचर मतलब जैसे कि अगर फॉस्फोलिपिड्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, विच आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड्स, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड्स में दे हैव हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, राइट। तो इनके पास दो रीजन्स होते हैं, दे हैव अ हाइड्रोफिलिक रीजन एंड हाइड्रोफोबिक रीजन। इसी तरीके से जितने भी लिपिड्स हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की भी बात की थी, कोलेस्ट्रॉल आर ऑल्सो टाइप ऑफ स्टेरॉइड लिपिड्स, ठीक है, स्टेरॉल लिपिड्स, ठीक है। तो उनमें भी एक हाइड्रोफोबिक रीजन, एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है। तो जितने भी लिपिड्स हैं विच आर फॉर्मिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे शेयर दिस एम्फीपैथिक नेचर, ठीक है। तो शुगर कंपोनेंट नहीं, ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं, फॉस्फेट ग्रुप नहीं, हाइड्रोफोबिक रीजन हाँ, मतलब कि हाँ अगर कौन सा एक ऐसी चीज़ है जो लिपिड मॉलिक्यूल शेयर करते हैं एक फीचर विच इज इट इज़ द हाइड्रोफोबिक रीजन, ठीक है। उनके पास एक हाइड्रोफिलिक रीजन होता है और एक हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट सूटेबल आंसर, ठीक है। अब उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 28, एंड हियर्स व्हाट इट सेज। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पोलर हेड्स and non-polar tails as shown in the figure. Which option represents the correct arrangement of lipids in the phospholipid bilayer? ठीक है, अब आपको मुझे बताना है करेक्ट आंसर। तो हम सबको पता है जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इनका जो एक पोलर हेड होता है और उनकी नॉन पोलर टेल होती है। कैसे अरेंज होते हैं ये
phospholipid bilayer में. What is the correct arrangement? Now the tail is towards the outside, the head is towards the inside. तो ये तो गलत हो गया. The head is towards the outside, the tail is towards the inside. This is the correct. Head is towards outside, then inside, outside, inside. ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. Now the correct answer would be option number B. 28 का correct answer would be option number B, because option number B अगर आप ध्यान से देखो तो option number B कहता है, ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट करता है कि जो बेसिकली हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, द हाइड्रोफिलिक हेड्स दे आर फेसिंग द एक्वस एनवायरनमेंट. ठीक है, ये वाला एक्वस एनवायरनमेंट, दिस इज आउटसाइड द सेल एंड दिस इज लाइक द एक्वस एनवायरनमेंट ऑफ द साइटोसोल, राइट. सो बेसिकली जो हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट्स होते हैं, दे आर फेसिंग द वाटरी एनवायरनमेंट विच इज आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल, वेयर एज द हाइड्रोफोबिक टेल्स, जिन्हें पानी से डर लगता है, दे आर काइंड ऑफ फॉर्मिंग द कोर रीजन, और एक सील कर रहे हैं एक तरीके से. ठीक है, सो हाइड्रोफिलिक हेड्स आर बेसिकली फेसिंग द वाटरी एनवायरनमेंट ऑन द आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. वेयरएज अगर मैं हाइड्रोफोबिक टेल्स की बात करूँ तो हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होती हैं बच्चा, दे आर काइंड ऑफ फॉर्मिंग द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन. I hope that is clear to everybody, right? So if we go by that, option number B automatically becomes the correct answer. Okay, let's move on to the next question, which is question number 29. 29 is, okay, I have a history with 29. I mean, okay, let's not get into that. Yeah, so question number 29 says a phospholipid molecule is amphipathic and produces two layers coming in contact with H2O. The head of the phospholipid molecule is A at an angle of 40 at the outer surface, on the inner side, or B embedded in protein molecule. अब बच्चा ये क्वेश्चन बोलता है कि एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एम्फीपैथिक नेचर होता है, मतलब वो दो बाई लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होता है, राइट. इट प्रोड्यूसेस टू लेयर्स, दो लेयर्स बनाता है. ठीक है, जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आती हैं. नो वन सेकेंड. So now let's move on to the next question, which is question number 29, and here's what it says. Question number 29 says a phospholipid molecule is amphipathic and produces two layers which come in contact with water. The head of the phospholipid molecule is A at an angle of 40 degree, B at the outer surface, C on the inner side, or is it option number D embedded in protein molecules? What do you think बच्चा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बच्चा एम्फीपैथिक होता है, हम सबको पता है, और दो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होता है. ठीक है, ऐसे दो लेयर्स बनी होती है, राइट, ऐसे दो लेयर्स बनी होती हैं. ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि यू नो दीज टू लेयर्स दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. ये दोनों लेयर्स पानी के कॉन्टैक्ट में तो आती हैं. द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड, जो हेड है ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का, ये किस तरीके से अरेंज होता है? इज इट अरेंज एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ऑन द आउटर सरफेस, ऑन द इनर साइड, और एम्बेडेड इन प्रोटीन. नाउ इफ यू गो बाय द डायग्राम, आपको एक हिंट और एक अंडरस्टैंडिंग तो मिली गई है, राइट. यू ऑलरेडी गॉट अ हिंट कि जो हेड होता है बेसिकली इट्स फेसिंग ऑन द आउटर साइड. हेड जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, वेयर एज द टेल्स आर बेसिकली फॉर्मिंग द इनर साइड, राइट. सो द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इज एट द आउटर साइड. So option number B becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 30. Okay, let's move on to the next question, which is question number 30, and here's what question number 30 says. Question number 30 बच्चा बोलता है lipids are arranged within the membrane with A polar heads towards the inner side and hydrophobic tails towards the outer side, B both heads and tails towards the outer side, C heads towards the outer side and tails towards the inner side, or is it D both heads and tails towards the inner side. अब लिपिड्स जब अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में, वो किस तरीके से अरेंज है? ठीक है, हम सबको पता है लिपिड्स किस तरीके से अरेंज होते हैं. द पोलर हेड्स आर बेसिकली टुवर्ड्स द आउटर साइड, द हेड्स आर टुवर्ड्स द आउटर साइड, राइट. फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बना दिया मैंने. ठीक है, द हेड्स आर टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द टेल इज टुवर्ड्स द इनर साइड. सो इफ यू गो बाय दैट, ऑप्शन नंबर C becomes the correct answer. 30 का C. Okay, I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question. Oh, the question is repeated. Okay, let's move on to the next question. Let me delete this one. Just give me a moment. Okay, there you go. Alright, so here's question number 31 on your screens. Question number 31 बोलता है the most abundant lipid in the cell membrane is A cutin, B glycolipid, C steroid, or D phosphoglycerides. What do you think बच्चा? सबसे ज़्यादा अबंडेंट लिपिड कौन सा है सेल मेम्ब्रेन में? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है सेल मेम्ब्रेन में? क्या आप मुझे बता सकते हो? इज़ इट A क्यूटिन, इज़ इट B ग्लाइकोलिपिड, इज़ इट C स्टेरॉइड, और इज़ इट D फॉस्फोग्लिसराइड्स? व्हाट डू यू थिंक? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है बच्चा? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड है ऑप्शन नंबर D फॉस्फोग्लिसराइड्स. ठीक है, तो कई सारे लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोलिपिड, यू नो वी हैव फॉस्फोलिपिड्स, और तो बेसिकली फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोग्लिसराइड्स एक तरीके से. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज फॉस्फोग्लिसराइड्स. ठीक है, ऑप्शन नंबर D बिकम्स द करेक्ट आंसर. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह माय गॉड, दिस वन इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन ऑनेस्टली. ऑफ कोर्स बियॉन्ड NCERT, तो इस पर ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट मी क्वेश्चन लाइक दीज इन द वर्स्ट केस सिनेरियो विल बी आस्क्ड. ठीक है, बस तो नहीं पूछ पाएंगे फॉर श्योर. अब देखो,
इस क्वेश्चन के ना एक्चुअली में दो इंटरप्रिटेशन है, दो इंटरप्रिटेशन दो नहीं है, दो आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से भी एक अलग आंसर है, एमटीजी के हिसाब से अगर आंसर की चेक करो तो एक अलग आंसर आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 32 says, first let's read the question. क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, which is the best way to separate intact chloroplast from green leaves of angiosperm plants? A. petrol ether, B. chloroform, C. 10% sucrose solution, or is it D. alcohol? What do you think? सबसे अच्छा तरीका टू सेपरेट इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन लीव्स जो होती हैं एंजियोस्पर्म्स की से, ग्रीन लीव्स जो होती हैं एंजियोस्पर्म की, उनमें से अगर आपको एज इट इज़ क्लोरोप्लास्ट इंटैक्ट मतलब बिना तोड़े क्लोरोप्लास्ट एज इट इज़ निकालना है तो आप कौन सा तरीका अपनाओगे? पेट्रोल ईथर, क्लोरोफॉर्म और 10% सुक्रोज सोल्यूशन। अब देखो ये सारी टेक्निक्स है, ऑफकोर्स उनकी डिटेल में जाने का कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज इट्स बेसलेस, नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम, बट फिर भी अगर मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए था सुक्रोज सोल्यूशन, द 10% सुक्रोज सोल्यूशन, ठीक है। और अगर कहीं ना कहीं अगर आप गूगल वगैरह भी चेक करोगे तो गूगल वगैरह पे अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हो, वैसे देयर इज नो पॉइंट ट्रस्ट मी, यू कैन कम्प्लीटली स्किप इट एंड यू कैन ट्रस्ट व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप पढ़ते हो ना तब भी कहीं ना कहीं वो यही बताता है कि द बेस्ट वे टू सेपरेट इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम ग्रीन लीव्स इज the sucrose solution, using sucrose solution. But as per MTG marks alcohol as the correct answer. So if you go by MTG, ठीक है, which is of course where the questions have been from. So अगर MTG की माने तो MTG के हिसाब से the best way to separate intact chloroplast from the green leaves of angiosperm plant is by using alcohol. So option number D becomes the correct answer. ठीक है, if you go by MTG, ठीक है, alcohol as per MTG. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question again is an interesting question and it's question number 33. And here's what question number 33 says. Question number 33 बोलता है, cell recognition and adhesion are facilitated by components of the plasma membrane. These components are generally A. protein molecules alone, B. lipids alone, C. both lipids and proteins, or D. glycolipids and glycoproteins. बच्चा, what do you think? सेल रिकग्निशन और सेल एडहीजन, सेल को रिकग्नाइज करने में, सेल को चिपकाने में, बेसिकली एडहीजन में, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मदद करते हैं, वो कंपोनेंट जनरली कौन से हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल, लिपिड्स अलोन, बोथ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, और ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। नाउ द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। अब देखो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, कहीं ना कहीं पहली बात तो सेल टू सेल रिकग्निशन में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन सेल टू सेल रिकग्निशन। ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं कहीं ना कहीं एंटीजेंस की तरह भी एक्ट कर रहे होते हैं, हेंस सेल रिकग्निशन में मदद करते हैं कि अच्छा इस सेल पे ये स्पेसिफिक एंटीजन है तो हम रिकग्नाइज कर लेते हैं सेल को, तो दे आर एक्टिंग एज एंटीजन एज वेल। तो कहीं ना कहीं इम्यून रिस्पॉन्स में भी इन्वॉल्व हो गए फिर, और एडीजन में भी मदद करते हैं। सेल रिकग्निशन एंड एडीजन आर फैसिलिटेटेड बाय टू कंपोनेंट्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दीज कंपोनेंट्स आर जनरली ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर डी becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question, which is question number 34. And here's what question number 34 says. Question number 34 बोलता है, select the incorrect statement regarding the plasma membrane. A. ratio of proteins and lipids varies considerably in different cell types. B. 52% proteins and 40% lipids constitute the membrane of human RBC. C. arrangement of proteins and lipids is LPPL, or is it D. head of lipid is hydrophilic? What do you think? What do you think बच्चा is the correct answer? Now if you go by the statements, जो प्रोटीन इस टू लिपिड्स का रेशियो होता है अगर हम फ्लूइड मेज़ैक मॉडल की माने, ठीक है, विच इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, तो रेशियो ऑफ प्रोटीन्स और लिपिड्स जो होता है वो वेरी करता है, अच्छा खासा वेरी करता है, वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में शायद जो कॉम्पोजिशन हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी की जो कॉम्पोजिशन हो, दैट माइट कम्प्लीटली वेरी फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन ऑफ लिवर सेल और ऑफ अ किडनी सेल, राइट। सो जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड्स का वो अच्छा खासा वेरी करता है इन डिफरेंट सेल टाइप्स, दैट्स करेक्ट, ठीक है। 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, इवन दैट वाज द डेटा विच इज गिवन इन एनसीईआरटी कि 52% प्रोटीन और 40% लिपिड्स होते हैं इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी, इवन दैट इज करेक्ट। अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज LPPL। पहली बात तो अगर हम फ्लूइड मेज़ैक मॉडल की माने तो पहली बात तो सैंडविच लेयर्स के फॉर्म में अरेंज होते ही नहीं, एसिमेट्रिक लेयर है, प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन आर आइसबर्ग्स विच आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स, राइट। सो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, बट अगर इसको मान लो अगर इसको सही तरीके से देते हुए और इफ यू गो बाई द सैंडविच मॉडल के हिसाब से बाहर की तरफ होते हैं दो प्रोटीन लेयर्स,
two protein layers on either side, मतलब one protein layer on either side, and it's sandwiching दो लिपिड की जो bilayer होती है, it's sandwiching a phospholipid bilayer. तो हम ऐसे कहते हैं ना कि phospholipid bilayer is being sandwiched between the two protein layers. तो अगर एक शायद अरेंजमेंट PLLP होता तो एक पल को हम इसको सही मान भी लेते, बट दैट वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. ठीक है, और लास्ट चीज़ जो स्टेटमेंट पास की गई है विच इज़ द हेड ऑफ लिपिड इज हाइड्रोफिलिक, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. जो हेड होता है फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है. सो वी बेसिकली हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर माने तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. तो ऑप्शन नंबर सी becomes the correct answer. Alright, now let's move on to the next question. Again, a diagram based question, so kindly make a note of it. Question number 35 says, identify the components which have been labeled as A, B, C, D in the given figure of a cell membrane from list 1 to 7 given along with, and then you have to select the correct option accordingly. ठीक है, अब बच्चा एक्चुअली में क्या हुआ था, while I was actually typing the question, तो जो sequence था ये थोड़ा सा different हो गया, which is why I had to reverse the sequence because options are as per the sequence, right? थोड़ा sequence को manage कर लेना, I'm sure उतना मैनेज कर ही लोगे आप लोग. तो दिस इज डायग्राम, लेट्स आइडेंटिफाई A, B, C and D. ठीक है, अब बच्चा अगर आइडेंटिफाई करने की बात आती है तो आइडेंटिफाई करते हैं मिलके. अगर मैं A की बात करूँ तो A आपको क्या दिख रहा है बच्चा, A आपको क्या दिख रहा है ना, A इज़ एक्चुअली दीज आर शुगर्स. A इज़ नथिंग बट शुगर, राइट? तो A गोज़ विद 1, A गोज़ विद 1, A इज़ शुगर. ठीक है, उसके बाद अगर मैं B की बात करूँ बच्चा, तो B यहाँ पे क्या है, B एक्चुअली में है, B है हमारे पास प्रोटीन. B ये देखो आपको दिख रहा है ना, B एक्चुअली में प्रोटीन है. ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा इतना कोई मेंशन नहीं, B प्रोटीन है. अगर एनसीईआरटी के डायग्राम भी आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो B प्रोटीन है. ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ C की, तो C बच्चा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C एक्चुअली में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. C एक्चुअली में इफ यू गो टू जूम इट इन, C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, C फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो C kind of represents 3 which is lipid bilayer. और अगर D की बात करूँ तो D बच्चा किसको रिप्रेजेंट करे, D represents an integral protein, right, or a transmembrane protein. So D goes with 4, A goes with 1, A represent कर रहा है 1 को which is sugar, B represent कर रहा है proteins को which is 2, C represent कर रहा है for lipid bilayer को, so C goes with 3, और D actually में represent कर रहा है integral या intrinsic protein जिनको transmembrane protein भी बोला जाता है 4 को. So it's option number A, 1, 2, 3 and 4. So option number A becomes the correct answer. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question. Is it question number 36? Oh yes it is. Give me a moment and we are good to go. Alright, so if we look at question number 36, question number 36 बोलता है integral cell membrane proteins A are partially embedded in lipid layers, B are completely embedded in lipid layers, C show lateral but not vertical movements within bilayer of lipid, or D all of these. What do you think बच्चा? जो इंटेग्रल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वो कम्प्लीटली एम्बेडेड होते हैं, पार्शली एम्बेडेड होते हैं. ठीक है, एक्चुअली में हम देखोगे कुछ इंटेग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो पार्शली एम्बेडेड होते हैं इन द मेम्ब्रेन, लाइक यू सी दिस वन. बट कुछ होते हैं जो एकदम आर पार चले जाते हैं मेम्ब्रेन के, विच आर कम्प्लीटली एम्बेडेड इन द लिपिड लेयर्स. ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन और शो वर्टिकल मूवमेंट्स, बट ऐसे साइडवेज मूवमेंट, ऐसे साइडवेज तो मूवमेंट दिखा ही सकते हैं, लेकिन शो लैटरल मूवमेंट्स बट नॉट वर्टिकल मूवमेंट्स, राइट? सो ऑल ऑफ दीज बिकम्स द करेक्ट आंसर. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर D, which is all of these. I hope that is clear to everybody. So all of these becomes the correct answer. Let's move on to the next question, which is question number 37. Here's what question number 37 says. Question number 37 बोलता है latest model of cell membrane is the A unit membrane model. Give me a moment. A unit membrane model, B fluid mosaic model, C Danielian Davidson model, or D Robertson model. What do you think? सबसे latest model क्या है cell membrane का? Fluid mosaic model, which was given by two gentlemen, Stiger and Nicholson. I hope that is clear to everybody. Let's move on to the next question. The next question is question number 38, and here's what question number 38 says. Question number 38 बोलता है according to the modern concept, cell membrane is A solid, B quasi-fluid, C fluid, or D solidified sheet. What do you think? So if you go by the modern concept, which is by the most latest model, which is the fluid mosaic model, उसके हिसाब से जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, it's quasi-fluid, semi-fluid nature होता है. ठीक है, it's not completely liquid or it's not completely solid, it's semi-fluid, quasi-fluid. ठीक है, I hope that is clear to everybody. So 38 का correct answer will be option number B. Let's move on to the next question, which is question number 39, and here's what it says. Question number 39 बोलता है the molecules in the membranes that limit its permeability are the A carbohydrates, B phospholipids, C protein, और D water. What do you think बच्चा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं मेम्ब्रेन में
जो लिमिट कर देते हैं उसकी परमेबिलिटी, मतलब जो कहीं ना कहीं बेसिकली हम सबको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है, तो ऐसे क्या मॉलिक्यूल्स हैं जो उसे मजबूर कर देते हैं सिलेक्टिवली परमेबल होने पे, ठीक है। ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं कहीं ना कहीं उसकी परमेबिलिटी को लिमिट कर रहे हैं, उसकी परमेबिलिटी उसे कम्प्लीटली परमेबल होने नहीं दे रहे हैं। नाउ द बेस्ट आंसर टू दैट वुड बी, आई एम श्योर इट्स अ नो ब्रेनर, इट इज़ फॉस्फोलिपिड्स। अब देखो क्यों ऐसा मैंने बोला, देखो फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ना एक सेल मेम्ब्रेन में, और फॉस्फोलिपिड्स में पर्टिकुलरली वे स्पेसिफिकली टॉकिंग फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर है, ठीक है। मुझे एक मिनट थोड़ी सी एक दो ऐसे मॉलिक्यूल्स बना दो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, let's to explain this to you better. A phospholipid inner cell membrane, and particularly we're talking about the hydrophobic tails. Hydrophobic tails is what limits the permeability of the cell membrane, because hydrophilic tails जो होते हैं ना, in a way they are creating a barrier, एक बैरियर की तरह से एक बैरियर एक रुकावट से क्रिएट कर देती हैं, and it kind of prevents the polar और चार्ज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पासिंग थ्रू फ्रीली। अब बिकॉज देखो हाइड्रोफिलिक जो हेड्स हैं वो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये जो टेल्स हैं जो कोर बनाती हैं, ठीक है, जब फॉर्मिंग द कोर, ये हाइड्रोफोबिक है ना, डर लगता है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, ठीक है। तो ये खुद के थ्रू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को, मतलब पोलर मॉलिक्यूल्स को पास ही नहीं होने देंगी, दे विल अलाउ द स्मॉल पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू, बट जो पोलर या चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उसे ये सही से पास ही नहीं होने देते हैं, हेंस वी रिक्वायर लॉट ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड ऑल ऑफ दैट. So one thing that is kind of creating a barrier and limiting the permeability of the cell membrane is specifically the hydrophobic tails, to be more precise, the phospholipids. Okay, so option number B becomes the correct answer. Now let's move on to the next question. The next question is question number 40, and here's what question number 40 says. Question number 40 बोलता है, who gave the lamellar or sandwich model of cell membrane? किसने लैमेला या सैंडविच मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का? इज इट ए सिंगर एंड निकोलसन, इज इट बी डैनियल एंड डेविसन, इज इट सी जे रॉबर्टसन, और इज इट ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज? व्हाट डू यू थिंक? किसने लैमेला या सैंडविच मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का? नाउ द करेक्ट आंसर टू दैट वुड बी option number B. The correct answer would be option number B, which is sandwich model of the plasma membrane was given by two scientists, which was Hugh Davison and James Danieli. ठीक है, तो इनका पूरा नाम ऐसे जाने की जरूरत नहीं, ऑल्दो मुझे जस्ट याद आया तो मैंने बता दिया, पूरा नाम था ऐसे, ये पूरा नाम है एक्चुअली में Hugh Davison. It's Hugh Davison and James Danieli. It's Hugh Davison and James Danieli. आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबडी, इतना सबको समझ आ गया, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ह्यू डेविसन एंड जेम्स डैनियल, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी बिकम्स द करेक्ट आंसर, इतना सबको समझ में आया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41 एंड हियर्स व्हाट इट सेज. क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन्स विच एस्पेक्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जो सिंगर और निकोलसन ने दिया, वो कौन से एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन को समझाता है? ए ओनली द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट, बी ओनली द फंक्शनल एस्पेक्ट, सी बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, और डी ओनली फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. व्हाट डू यू थिंक बच्चा? जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का, वो कौन से एस्पेक्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन को समझाता है? क्या सिर्फ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है? नहीं, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर एज वेल एज उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करता है. सो दिस मॉडल एक्सप्लेन बोथ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट. सो 41 का करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.